ठीक है. So in the last lecture we talked about collisions, 3D collisions in the center of mass frame of reference, and we came up with some very interesting observations about the different quantities when they are measured from a center of mass frame of reference. थोड़ा सा मैं 5 मिनट उसको रिवाइज कर देता हूँ because these are important things, and then उसके बाद we will do the further analysis. Okay. Okay, so the important points are that let me draw the diagram that I drew last time just to sort of brush up the important points. कौन सा diagram बनाया था मैंने last time? ठीक है, कुछ इस तरह का था that there is some kind of a mass m1 that is traveling in a particular direction and a mass m2 that is also traveling in a particular direction with velocities v1 and v2 with respect to some kind of a laboratory frame of reference, and they meet at a particular point, they interact, they collide, and due to the collision both of them exchange momentum and then go about their respective directions. Okay, m1 gets deflected by a certain angle, travels in a new direction. m2 gets deflected by a certain angle, travels in a new direction. Okay, with their velocities, with their new velocities of v1 dash and v2 dash. All of these quantities are defined in three-dimensional space. This is quite simply put a collision problem in laboratory system or L system. Now we have done the calculations to look at the quantities of velocities v1, v1 dash, v2, v2 dash from the perspective of a frame of reference which is traveling along with the center of mass of these two objects, m1 and m2. And when we did those calculations and comparisons, we came up with the collision vector diagram that looks something like this. So if in the center of mass frame of reference v1 had a velocity vector in this direction and the velocity of mass m1 in the center of mass frame of reference is given by v1c, and v2 sir, yes, your screen is not visible to me. am I not No, sure? it is. No, sir. Sir, it's visible, sir. Visible, sir. I think there are some network issues. Let me share it Visible once है, again. visible. Let me share it once again. Okay, now is it visible? Yes, sir, visible है. Okay. Yes, sir. Yes, No, sir. sir. Yes, sir. Then let me join again. Okay, sir. Okay. So if the velocity of the first particle in the center of mass frame of reference is given by v1c, and the velocity of the second particle in the center of mass frame of reference is given by v2c, then the velocities
of the particles after the collision are given by v1c dash V2C dash. and v2c dash. Okay, so on this hand you have v1c dash and v2c dash. Okay, so this is what happens in the center of mass frame of reference, so CM system. Okay, and the angle of scattering that happens in the CM system is given by angle theta. The important points to note are as follows. The total momentum of system in center of mass frame of reference is how much? 0. Is 0. Zero. Is 0. That means that Equal is magnitude. P1C plus P2C is equal to 0 before collision, and P1C dash plus P2C dash is also equal to 0, which simply implies that all velocity vectors before and after collision lie on one plane known as the plane of scattering. Alright, this is known as the plane of scattering. Second of all, both particles in the center of mass system are deflected in such a manner that their respective velocity vectors undergo an equal rotation. That is theta. Now 3D स्पेस में जिस एंगल से एक पार्टिकल रोटेट होगा और जिस एंगल से दूसरा पार्टिकल रोटेट होगा फ्रॉम इट्स लेट्स सपोज ओरिजिनल डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरीली द सेम, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर पहले पार्टिकल का था बिफोर कलिजन और जो वेलोसिटी वेक्टर पहले पार्टिकल का है आफ्टर कलिजन विल अंडरगो एन अमाउंट ऑफ एंगल बाय थीटा विच इज़ द सेम एज जो वेलोसिटी वेक्टर दूसरे पार्टिकल का था बिफोर कलिजन और जो वेलोसिटी वेक्टर दूसरे पार्टिकल का होता है आफ्टर कलिजन विल अंडरगो द सेम अमाउंट ऑफ एंगल. सो दूसरे पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर बिफोर एंड आफ्टर कलिजन will undergo the same amount of scattering. Okay, so what happens is that Yes. the effect of a collision is purely the rotation of the velocity vectors of both the particles. Quite simply put, nahi, for elastic collisions Magnitudes of the vector the same. the magnitude Velocity vector is same. of velocity vectors respective velocity vectors remain same. बेटा म्यूट कर लो अपने आप को. Remain same before and after collision. That is V1C is equal to magnitude V1C dash and V2C is equal to V2C dash. So before and after collision, the magnitude remains the same for the case of elastic collisions. That means, simply put,
simply put, the effect of a collision in the center of mass frame of reference is to rotate the velocity vector. That is all. Rotate the velocity vectors. That's it. और कोई इफेक्ट नहीं है. इज टू रोटेट द वेलोसिटी वेक्टर्स. अगर इलास्टिक कलीजन है तो बिफोर एंड आफ्टर कलीजन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स डू नॉट चेंज. दे सिंपली अंडरगो रोटेशन एंड दैट ऑल्सो बाय द सेम अमाउंट. तो पार्टिकल m1 की वेलोसिटी वेक्टर का जो रोटेशन होगा, पार्टिकल m2 की वेलोसिटी वेक्टर का भी सेम ही रोटेशन होगा बाय द सेम एंगल without any change in magnitude. So the effect of a collision is simply rotation of the velocity vectors in the center of mass plane of scattering. ठीक है? So these are some of the important points to keep in mind. Yeah. सेंटर ऑफ मास सिस्टम में थीटा इक्वल कैसे होगा? Okay. थीटा इक्वल कैसे होगा? मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि ये दिस इज ट्रू, ये आप मान रहे हो? यस सर. तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है V2C और V1C का. यस सर. और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. यस सर. तो ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री से ये बोल सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. बट सर ये कोलिजन के बाद थीटा इक्वल कैसे हो सकता है सर? ये तो आपकी बात समझ गया मैं लेबोरेटरी सिस्टम में नहीं बोल रहा हूँ. आप लेबोरेटरी सिस्टम में इमेजिन कर रहे हो. लेबोरेटरी सिस्टम में एंगल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास सिस्टम में एंगल्स इक्वल होंगे. सेंटर ऑफ मास सिस्टम को थोड़ा सा विजुलाइज करने में दिक्कत होती है, लेकिन इट इज़ इक्वल. इवन दो अगर आपको दिक्कत हो रही है विजुलाइज करने में, इट इज़ इक्वल. तो आई थिंक उनको ये बोलना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में होता है प्लेन के अंदर. उनको या तो कंफ्यूजन हो रही है. आप जो इमेजिन कर रहे हो, आप लेबोरेटरी सिस्टम में इमेजिन कर रहे हो, और लेबोरेटरी सिस्टम में आपका पॉइंट वैलिड है. लेबोरेटरी सिस्टम में ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों एंगल्स का जो डिफ्लेक्शन है वो सेम होगा. लेकिन सेंटर ऑफ मास सिस्टम में अगर आप एज एन ऑब्जर्वर यू आर ट्रैवलिंग इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम, उस केस में आपके लिए दोनों की एंगल का स्कैटरिंग सेम होगा. ओके सर. थोड़ा सा आप इस पे सोचो, थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचो. यू विल फील मोर कंफर्टेबल इफ यू थिंक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट. ठीक है सर, इसमें न्यूमेरिकल से आएंगे. न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस डू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू how we can relate the angle of scattering in the laboratory system with the angle of scattering in the center of mass system. तो उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं. उस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. ठीक है, लेट अस मूव अहेड and do a specific problem where we find a relationship between. They can ask questions related to this. जो मैं अभी बताने वाला हूँ, they can ask a question to derive the relationship between angle of scattering in the laboratory system and the angle of scattering in the center of mass system. This is quite important. So laboratory scattering angle and center of mass scattering angle. लेकिन we will not prove it for a general case. We will prove it for a very specific case. This was a little bit of a general case where both the particles are moving, but we are going to prove for a very specific case where, let's suppose, there is a particle of mass m which is traveling. Let me draw the diagram, okay, properly. Okay, so let's suppose there is a particle mass m1 which is traveling along a straight line
with velocity v1, and it strikes another particle m2 which is at rest. Let's suppose, okay, there is a particle m2, let's suppose, which is at rest. The moment this particle strikes m2, m2 also experiences some kind of a recoil in the forward direction here, let's suppose at a particular angle. मतलब आप कैरम खेल रहे हो ना, आपने एक से दूसरे को मारा तो दूसरा भी मूव करेगा और आपका जो पहला है वो भी डिफ्लेक्ट हो जाता है. And both these two final velocities are, let's suppose, v1 dash and v2 dash. ठीक है, imagine some kind of a carom board in which you hit one particle with another. The first particle m1 hits m2 with a velocity v1 such that m2 was at rest. तो यहाँ पे m1 is moving initially with v1, but m2 is initially at rest. रेस्ट पे होगा. At rest. ओके, ऐसा सिचुएशन में जो है हम इस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं that the angle of deflection of m1 and angle of deflection of m2 is given by, let's suppose, phi 1 and phi 2 respectively in the L system. Okay, this is how we're defining a problem. We are making it a little bit easier for us by assuming that one of the particles was at rest initially. तो एक पार्टिकल पहले रेस्ट पे था, दूसरा पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक करता है. अब दोनों ही मोशन पे है, लेकिन कंपेयर टू देयर इनिशियल डायग्राम्स, इनिशियल इंसिडेंट डायरेक्शन, उनका जो डिफ्लेक्शन है दैट आर गिवन बाय phi 1 and phi 2 respectively for m1 and m2. So phi 1 and phi 2 are the laboratory scattering angles for m1 and m2 respectively with respect to the incident direction of m1. ठीक है, this is how I have defined the problem. So now that I've defined the problem in such a manner, I want to construct its collision dynamics in the center of mass frame of reference. To construct its collision dynamics in the center of mass frame of reference, let us do some couple of calculations. So first of all, let us calculate the velocity of center of mass. वैसे यहाँ पे देख के ही मालूम चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन क्या है. ठीक है, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो v इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 into 0 before collision. Okay, so before collision center of mass की velocity and after collision center of mass की velocity सेम रहती है. तो यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट हम लिख सकते थे, एक एडिशनल पॉइंट 1a एंड 1b लिख देते हैं. वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट velocity of center of mass remains constant before and after collision, है ना. Velocity of center of mass remains constant before and after collision. Okay, so अगर मैं v को before collision प्रूफ करता हूँ, that same v will be also applicable after collision. So this is divided by m1 plus m2. So this is equal to m1 by m1 plus m2 v1. So this is equal to म्यू के टर्म्स पे लिख सकता हूँ, ऐसे भी छोड़ सकता हूँ. ओके, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ m1 with respect to center of mass system is v1c is equal to
V1 minus capital V. So this is equal to V1 minus M1 upon M1 plus M2. V1 is equal to M1 V1 plus M2 V1 minus M1 V1. So this is divided by M1 plus M2. So this is equal to M1 V1 cancel, M2 V1 upon M1 plus M2. ठीक है, so this is one point, this is let's suppose point, this is one, this is another. Okay, थोड़ा सा नोट डाउन करना बाकी है. ठीक है, कर लो. Velocity of M2 with respect to CM system. So that will be equal to V2C is equal to 0 minus capital V, है ना. So this is nothing but minus M1 upon M1 plus M2 V1. तो इसका जो डायरेक्शन है, इन दोनों का डायरेक्शन जो ऑपोजिट होगा, ठीक है, वो ऑपोजिट टू ईच अदर. मतलब अगर V1C इस डायरेक्शन में है तो V2C जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट. ओके, V1C and V2C are opposite to each other. ये तो ऑब्वियस है ही, बट we can also prove that if I take the ratio of capital V upon V1C, so this is equal to capital V is equal to M1 upon M2 V1 multiplied by V1C is equal to M2 V1 upon M1 plus M2. क्योंकि ये वेक्टर्स है, आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. कैपिटल V अपॉन V1C इज इक्वल टू, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे. It should be M1 by M1 plus M1 plus M2. So this is equal to M1 plus, this is M1 plus M2, M1 plus M2. तो ये हो गया आपका कैंसिल, ये हो गया आपका कैंसिल, V1 हो गया कैंसिल. द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2. ठीक है, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ. सो और सबसे पहली बात V1C इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 V1. तो इससे क्या मालूम चलता है, इससे मालूम ये चलता है कि डायरेक्शन ऑफ V1C, it should be V, not V. sorry, V है सर क्या? हाँ, डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना. और डायरेक्शन ऑफ सेकेंड पार्टिकल ऑल्सो सेम इन द सेम लाइन बेसिकली. और मैग्नीट्यूड के टर्म्स पे V1C इज इक्वल टू M2 बाई M1 V. और जस्ट एक रेशियो लिख देता हूँ मैं, बाद में इसको यूज़ करूँगा. द रेशियो विल बी कैपिटल V अपॉन V1 से लिख देता हूँ मैं, कैपिटल V अपॉन V1C इज इक्वल टू M1 बाई M2. ओके, दिस इज अ रेशियो. कैपिटल V इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास and V1C is the velocity of the first particle in the center of mass frame of reference. ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव ये होता है कि एक तो V1C is smaller than V, कैपिटल V, बट उनका डायरेक्शन सेम है. एंड V2C का डायरेक्शन इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ V1C. ठीक है, सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, वेक्टर सेकंड डायग्राम, पॉइंट समझाना. मैं डायग्राम से समझाता हूँ, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ. एक इसमें क्या है, मैंने क्या पॉइंट प्रूव किया है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, V1C इज ऑपोजिट टू V2C. ठीक है, वो यहाँ से प्रूव हो रहा है, इन दोनों को कंपैरिजन करके हो रहा है प्रूफ. यस
और V1C is same direction as कैपिटल V, तो यहाँ से प्रूव हो रहा है ना? ओके तो इसका मतलब V2C इज ऑपोजिट टू, V1C नहीं, ऑपोजिट टू कैपिटल V, वो तो मैंने पहले बोला Capital. कैपिटल। That सो opposite दीज to 3 capital. पॉइंट्स, ओके, एज इट ड्रॉ द डायग्राम, हाँ. So it simply means that if I draw the diagram looks very simplistic in fact. The diagram looks something like this. आपने नोट डाउन कर लिया ये सब? यस नो सर हाँ, नोट डाउन कर लो प्लीज, जल्दी से नोट सर डाउन एक कर बार लो. ऊपर कर लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ जी, प्लीज नोट इट डाउन. सर और ऊपर कर दो, लास्ट पॉइंट जो आपने दिखाया था ना वो नोट करना है। सर 4th पॉइंट। 4th पॉइंट ये? यस सर। लिख लिया? सर वो जो आपने 3 One पॉइंट्स बताए थे लास्ट में, उसमें लास्ट पॉइंट कौन सा था? यही तो सारे पॉइंट्स थे ना. सर ये वाले The नहीं, वो जो direction of V2C is opposite to V. हाँ, अभी ये नोट डाउन कर लो. अच्छा हाँ ठीक, ओके। These are the 3 points. ठीक है? Yes, So- sir. So if we draw the diagram, okay, so the direction of V1C is, let's suppose, this one. Okay. If this is the direction of V1C, क्योंकि center of mass is in the direction of V1, है ना? Center of mass is in the direction of V1. So V is in the direction of V1. एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, V is in the direction of V1. फर्स्ट पार्टिकल का जो मोशन है उस डायरेक्शन में, वो यहाँ से प्रूव हो रहा है. ठीक है, तो V इज इन द डायरेक्शन ऑफ V1, तो V1C इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ V1. तो V1 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में V1C भी है. तो V1C अगर इस डायरेक्शन में है तो V2C विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये आपका V2C, दूसरे उससे बना देता हूँ, ये आपका हो गया V2C. ठीक है, दिस इज V2C. ऑलराइट, तो उसके बाद जो भी डिफ्लेक्शन होता है V1C डैश, लेट्स सपोज V1C डैश गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय दिस एंगल. तो बेस्ड ऑन आवर assumptions from earlier important points, V2C will be deflected in this direction. Okay, so this is V1C dash and V2C dash.
नाउ यहाँ पे द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को अगर हमें ठीक से देखना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रीअरेंज द वेक्टर्स बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन. ओके, आई एम गोइंग टू रीअरेंज द वेक्टर्स बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन. सो V1C को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज V1C और V1C डैश यही रहेगा. मैं दो डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कन्फ्यूजन ना हो. मुझे पता है कन्फ्यूजन आएगा. और V2C डैश को V2C को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज V2C. डायरेक्शन इज सेम एंड V2C डैश इज एग्जैक्टली सेम एज बिफोर. सो V2C dash. So from here you can see that V1C is rotated by some angle which is, let's suppose, theta. Then V2C will also be rotated by some angle which is equal to theta, and theta here is the scattering angle. So in CM system, in CM system, theta is the CM scattering angle. यहाँ पे there were two scattering angles. यहाँ पे there were scattering angles phi1 and phi2 in the laboratory system. यहाँ पे there is just one scattering angle which is theta, which is the same for both. ठीक है? Yes, sir. All right. Yes, sir. Yes, sir. This is a vector diagram purely from the L system, and this is a vector diagram purely from the center of mass system. If I combine both these two diagrams, then I will be able to do some trigonometric analysis. So let me combine the vector v1 dash, the vector capital V, and the vector v1c dash and v1c from these two diagrams. Okay. मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आप इसको कंपेयर करना. ये ड्रॉ हो गया आपसे? No, sir. Yes. यस एक मिनट देता हूँ, आप जल्दी बना लो इसको. सर ये दूसरा डायग्राम एक बार दोबारा बताना. दोनों डायग्राम सेम है, लेकिन मेरे को रोटेशन दिखाना था वेक्टर का. तो रोटेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? रोटेशन जो ये वेक्टर है इसका रोटेशन डायरेक्शन ये है ना बेसिकली, इसलिए मैंने दूसरे डायग्राम को ऐसे बनाया है. फिर आप बोलते सर वेक्टर को चेंज क्यों कर दिया? चेंज नहीं किया. ये जो वेक्टर है यही वेक्टर है, लेकिन मैं बस आपको दिखाना चाहता था ये वेक्टर जब ये वेक्टर बन जाता है तो इसमें एक रोटेशन क्रिएट हो गया. दैट्स ऑल, है ना? नहीं तो फिर आपसे एक गलती पॉसिबल है कि आप जब इसको सिर्फ इसी डायग्राम को बनाओगे ना तो ये एंगल आप डिफाइन कर दोगे. ये गलत एंगल है, इस एंगल की हम बात नहीं कर रहे. तो दैट वुड बी अ मिस्टेक. ठीक है ना? हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे, इस एंगल की बात. कौन से एंगल की बात की कि आप ये बना दो? क्या? अभी आपने कहा ना कि अगर हम इस वाले में बनाएंगे तो हम सिर्फ ये बना देंगे. वो कैसे बता रहे थे आप? ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है इसके बीच की एंगल डिफ्लेक्शन हम फाइंड आउट कर रहे हैं. अगर मैं दूसरा डायग्राम नहीं बनाता हूँ तो थोड़े कुछ बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि एंगल जो है हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल डायरेक्शन एंड द लेटर डायरेक्शन के बीच का एंगल विच इज़ दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम बनाया टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर क्लियरर इन योर माइंड्स. अगर हमारा जो लेफ्ट वाला डायग्राम है इसमें अगर हम V1C और V1C डैश वाले के बीच में जो एंगल अगर वो ले और फिर V2C और V2C डैश वाले के बीच में एंगल है, ये भी तो इक्वल ही होगी. थीटा की रोटेशन होगी ना. लेकिन मैं जो फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ दैट इज़ नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल. तो उसमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक एनालिसिस आ जाएगा. और अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि CM स्कैटरिंग एंगल, तो दिस इज़ द वन विच इज़ डिफाइंड एज CM स्कैटरिंग एंगल. तो आप अगर दूसरा वाला एंगल लेंगे उसमें भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें और इसमें थोड़ा सा कुछ एक ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशनशिप आ जाएगा और कुछ नहीं. जस्ट सो दैट माई डेफिनेशन इज़ क्लियर. मैं किस चीज़ को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ उसी के लिए मैंने डायग्राम बनाया. ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने किसको डिफाइन किया है जैसा थीटा. ओके सर. Okay, so let us do some calculations based on this. Okay, let me draw another diagram.
Okay, so now I'm going to combine a few vectors from this diagram and a few vectors from this diagram. Okay, I hope आपके notebook में दोनों diagram बना हुआ है. So just follow me. Okay, so V1C, let's suppose this is V1C. Okay, this is V1C, which is the vector representing the velocity of the first particle in the center of mass frame of reference. ठीक है, and let's suppose that this is V1C dash. ये V1C dash, which is the velocity of the first particle in the center of mass frame of reference after the collision. ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने येलो में बनाया है उन्हीं दो वेक्टर्स को मैंने यहाँ पे बना दिया, V1C and V1C dash. Now I said that V1C is the same as the direction of capital V, which is the center of mass frame of reference. So let's suppose this is the center of mass frame of reference. तो ये हो गया आपका capital V. Okay, so capital V is the velocity of the center of mass frame of reference, and the velocity of the particle in the L system is V1 dash. This is nothing but this particular angle, this vector V1 dash. Okay, ये V1C और V1C dash are the velocities of the first particle in the center of mass frame of reference before and after collision respectively. Capital V is the velocity of the center of mass, and V1 dash is the velocity of the first particle in the laboratory system after the collision. Definitions are clear? Yes. Yes, sir. Now based on both these two diagrams, V1C और V1C dash के बीच का एंगल क्या है? This angle is theta. ओके, V1C और V1C डैश के बीच का एंगल है थीटा, और कैपिटल V और V1 डैश के बीच का एंगल क्या है? phi 1 है ना? Yes. Yes, sir. Yes. This is phi 1. This is phi 1. नहीं समझ में आ रहा तो एक बार थोड़ा सा देख लो आप इसको. आगे सर V है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये सर ये लेबोरेटरी सिस्टम में है या फिर सेंटर ऑफ मास में? लेबोरेटरी सिस्टम में ना, ये जो मैंने ब्लैक में ड्रॉ किया है दोनों वेक्टर्स लेबोरेटरी सिस्टम में डिफाइंड है, और जो ब्लू में ड्रॉ किया है वो दोनों सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइंड है. ठीक है. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेबोरेटरी सिस्टम में V है ना, अपने सिस्टम में तो 0 होगा. ठीक है, यू आर नॉट ऑडिबल. क्या कह रहे हो बेटा आप? साउंड नहीं आ रहा तो आप चैट में लिख दो. आई लुक एट द चैट ऑल्सो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग. ओके, लेट मी डिफाइन इट वंस अगेन. ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, दीज आर द वेलोसिटी वेक्टर फर्स्ट पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इन द लेबोरेटरी सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हिच इज इन द सेम डायरेक्शन एज V1, जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रूव किया है. ठीक है, और इनके बीच के एंगल्स है थीटा एंड phi 1 रेस्पेक्टिवली. सो फ्रॉम ज्योमेट्रिकली वी कैन से दैट tan phi 1 is equal to V1C dash magnitude sin theta divided by capital V plus V1C dash cos theta. Yes? सर जो कैपिटल V है वो V1 ही है ना लेबोरेटरी सिस्टम? कैपिटल V V1 नहीं है, लेकिन कैपिटल V का डायरेक्शन V1 के डायरेक्शन के बराबर है. अच्छा, ओके. मतलब यहाँ पे मैंने प्रूव किया था ना आपको, यहाँ पे मैंने प्रूव किया ये और ये, द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल V एंड द डायरेक्शन ऑफ V1 आर द सेम. यस. The direction of capital V and the direction of V1 are the same,
उनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट डायरेक्शन सेम है. ओके सर. इज दिस एक्सप्रेशन रीजनेबल टू यू? ये समझ में आ गया? सर बता दीजिए थोड़ा इसको. tan phi 1 is आ गया, equal सर. to this upon this upon this, है कि नहीं? यस आ गया. Yes, sir. तो v1 Yes, sir. c डैश ये हो गया आपका, ये हो गया आपका v1 c डैश साइन थीटा, ये हो गया आपका कैपिटल V, और ये हो गया आपका v1 c डैश कॉस थीटा. अब समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. ठीक है. Okay, so now for स्वप्निल कुछ पूछ रहा है, उसने चैट में लिखा है. एक second, let me check. तो पूछ रहा है हमसे, Why are you taking only V1 for both CM and L system? What about V2? This is because I am interested in finding out the relationship between theta and phi 1. That's why I am taking V1. If I was interested in finding out the relationship between theta and phi 2, then I would take V2. लेकिन जैसा कि आपको एक बात बताओ, अगर मैंने थीटा और फाई 1 के बीच का रिलेशनशिप निकाल लिया तो फाई 2 तो अपने आप आ जाएगा ना. फाई 1 और फाई 2 में से मैं कोई भी एक निकाल लेता हूं, दूसरा अपने आप आ जाएगा ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन. यस सर. If I find out phi 1, I can easily find out phi 2 just by applying momentum conservation. That if I apply momentum conservation, that m1 v1 is equal to m1 v1 dash cos phi 1 plus m2 v2 dash cos phi 2. इससे में अगर मेरे पास बाकी सारे वेरिएबल्स है तो phi 1 आ गया तो phi 2 तो अपने आप आ जाएगा, है ना, along the y axis. या along the x axis मैं इसको और easy बना सकता हूँ. along the x axis मुझे अगर बनाना है तो मैं लिख सकता हूँ कि m1 v1 dash sin phi 1 is equal to m2 v2 dash sin phi 2. इसका मतलब ये है कि मेरे को अगर phi 1 मिल गया तो phi 2 ऑब्टेन करना ईजी है. तो therefore I am only going to find out the relationship between the center of mass scattering angle with one of the incident angles, like let's suppose phi 1. फिर phi 1 आ जाएगा तो phi 2 आ जाएगा. ठीक है, फिर phi 1 और phi 2 का रिलेशनशिप जो है ऑब्टेन करना बहुत ही आसान है. सो फॉर इलास्टिक collision we are going to consider the case of elastic collision, that if collision is elastic then I can proceed from here. Okay, otherwise I cannot proceed. v1c dash is equal to v1c. Yes, this Yes. simply becomes tan phi 1 is equal to यस सर. v1c sin theta divided by capital V plus v1c cos theta. Okay, so this simply becomes Nadi Sherlock Holmes. Please mute yourself. बेटा म्यूट कर लो. मिस्टर बेनेडिक्ट कम्बर बैच, क्या नाम है उसका. सो tan phi is equal to sin theta upon capital V by v1c plus cos theta. This is fine. This angle is fine. This expression is fine. Yes. फाइन सर फाइन. तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने एक रिलेशन ऑब्टेन किया था, अगर आपको याद हो तो. कहाँ गया वो रिलेशन? v upon v1 is हाँ, equal to ये m रिलेशन मैंने ऑब्टेन किया था. ओके, लेट सो v upon v1c is equal to m1 upon m2. तो आई कैन यूज दिस. We obtained initially that capital V upon v1c is equal to m1 upon m2. ठीक है, so I can use this here. ये तो था capital V upon v1c, कहाँ गया, is equal to m1 upon m2. So this becomes finally the relationship for scattering angles. Tan phi 1 scattering angle for mass m1 is equal to sin theta upon m1 upon m2 plus cos theta. This is the relationship between the scattering angle in the L system and the scattering angle
in the CM system. It's a very important relationship. There is a very good chance कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसका डिराइवेशन पूछा जा सकता है. Very important. Relationship between scattering angles in L system and CM system. ठीक है. डेरिवेशन किसी को नोट डाउन करना आगे से ऊपर. सर 5-2 तो मैंने तो बता दिया ना, अगर 5-1 आ गया तो 5-2 भी आ ही जाएगा ना बेटा. फॉर 5-2 आपके पास अगर 5-1 आ गया तो m1 v1 डैश साइन 5-1 इज इक्वल टू m2 v2 डैश साइन 5-2. तो यहाँ से 5-2 आ गया ना. सर जी सर. तो इसलिए मैंने एक को ऑब्टेन किया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा. Have you noted all of this down? यस सर. 1 मिनट. ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से. थोड़ा ऊपर कर. एक्सक्यूज मी सर. यस. सर अभी हमने 5-1 ढूंढा है इस वाले मतलब एक डायग्राम बना के, और लास्ट में हमने बोला कि 5-2 कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय m1 v1 sin 5-1 इज इक्वल टू m2 v2 sin 5-2. सर एक और डायग्राम बना के 5-2 कर सकते हैं अपने, जैसा हमने अभी डायग्राम बनाया. कर सकते हैं. उसका क्या आएगा सर एक्सप्रेशन? आप व्हाई डोंट यू ट्राई दैट. आप ट्राई करके देख लो. डायग्राम बता दो सर थोड़ा सा कैसे बनेगा. उसके बाद आपका यहाँ पे जो v1 c डैश है वो v2 के साथ बनेगा. इस तरह का डायग्राम ये होगा ना, ये आ जाएगा आपका, इस तरह का आ जाएगा, लेकिन वो v2 के साथ रिलेशनशिप होगा. फिर आपको कैपिटल V और v2 का रिलेशनशिप यहाँ पे मैंने v1 के साथ लिखा है, फिर v2 के साथ आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा. यस सर. करके देख लो, टेक इट एज अ होमवर्क. वैसे उसका पूछेंगे नहीं. यूजुअली क्या होता है, जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो किस एंगल में स्कैटर हो वही पूछते हैं. अच्छा, मेन स्कैटरिंग एंगल मतलब जो इंसिडेंट पार्टिकल वो इंसिडेंट पार्टिकल का स्कैटरिंग एंगल पूछ रहे हैं. आप अगर 5-2 पूछते हो तो 5-2 बेसिकली है क्या? 5-2 इज द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया यार. हमें सिंपल आंसर चाहिए. पहला पार्टिकल किस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, बस बात खत्म. तो अगर वो तुम्हें मालूम है तो दूसरा तो मालूम चली जाएगा. दूसरा है दूसरा पार्टिकल किस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. ओके सर, क्लियर. थोड़ा इसमें एनालिसिस करें इस एक्सप्रेशन का. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर. ठीक है. यस सर. यस सर. ठीक है, थोड़ा एनालिसिस करते हैं. यहाँ पे इलास्टिक कलीजन के लिए v1c और v1c डैश बराबर है ना? यस सर. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है. तो इसको हम रेडियस ऑफ ए सर्कल इमेजिन कर सकते हैं ना. हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. यस सर. चलो फिर एक सर्कल ड्रॉ करके थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. ओके, फर्दर एनालिसिस. So first case scenario is case 1, if capital V upon V1C, which is nothing but equal to M1 by M2, is very less than 1. Excuse me sir. Yeah, M1 is less than M2. Sir, in my laptop it's only showing the screen is stuck, I guess. Screen is stuck. Yes, sir. It's showing No, sir. Let me reshare again. Let me reshare again, okay?
अभी देख लो. No, sir. I guess there's some network issue. आ जाना चाहिए. अब रीजॉइन करके देख लो एक बार. So if m1 is less than m2 or m1 by m2 is less than 1 और capital V upon v1c is less than 1, उस केस में हम किस तरह का वो कर सकते हैं. तो let me draw a diagram and then we'll do the analysis, huh? In this particular situation. ओके. सो इस पर्टिकुलर केस में वेयर m1 इज, सो सबसे पहले मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट मी ड्रॉ इट. दिस इज द सेंटर. ओके. तो आई एम सेइंग आई एम डीलिंग विथ v1. यहाँ पे आप देख लो v1c एंड v1c डैश. v1c और v1c डैश को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में मैं एनालिसिस करूँगा. So let's suppose this is v1c and this is v1c dash. Excuse me, sir. Can you please repeat it again? I just joined. I am doing the You analysis. joined again. I am doing the analysis with respect to v1c and v1c dash. Okay? In an elastic collision, their magnitudes are same. So here, this is v1c and this is v1c dash, which are the radius of a circle that I have drawn. A geometrical hypothetical surface I have drawn. क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इलास्टिक कलिजन के लिए, तो इसलिए दोनों को मैंने एक ही सर्कल का रेडियस बना दिया है. Yes, sir. Elastic collisions, okay? I am doing the analysis for elastic collisions. Keep it in mind. All right. Now, Okay, sir. now, यहाँ से आपको क्या मालूम चलता है? यहाँ से आपको मालूम चलता है that capital V magnitude is less than V1C. Yes? Yes, sir. But direction is the same. Yes. तो अगर डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड लेस है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ सेम डायरेक्शन में, बट उसकी मैग्नीट्यूड कम है, कैपिटल V. ठीक है, डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड कम है, अंडर द सर्कमस्टांस वेयर m1 इज लेस देन m2. ओके. तो अब का v1 डैश बनेगा, वो बनेगा ये बनेगा v1 डैश, है ना? यही डायग्राम है, बट यहाँ पे वेक्टर्स की लेंथ को मैंने थोड़ा कम बड़ा कर दिया, छोटा बड़ा कर दिया, बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट m1 इज लेस देन m2. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Direction of V is the same as the direction of V1C, but the magnitude of V is less than the magnitude of V1C. That's why it is inside the circle. The vector V is inside the circle. All right. So if that is the case, in that case, this is theta and this is phi 1. This is phi 1. नाउ यहाँ पे क्या हो सकता है बेसिकली, m1 जब लेस देन m2 है, तो ये दोनों वेक्टर्स को आप इमेजिन करो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये इसी सर्कल में किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. मैंने ये एक रैंडम डायरेक्शन बनाया है v1c डैश और v1 डैश का, लेकिन ये इस सर्कल के लोकस ऑफ पॉइंट्स को पे इंटरसेक्ट करके वो किसी भी एंगल में डायरेक्ट कर सकते हैं. आई मीन दीज टू वेक्टर्स, ये जो दो वेक्टर है वो इस तरह से किसी भी एंगल में हो सकते हैं. ठीक है? कैन यू सी? Yes, sir. v1c dash and v1 dash, they can be at any random direction, right?
So which simply means that theta and phi 1 are unrestricted. So that means there is a possibility that both of them are unrestricted between 0 and pi. So the analysis is simply that सर phi यदि 1 थीटा is 180 हो जाए नहीं होगा इतनी आसानी से, उसमें भी कुछ कंडीशन है, मैं बताऊंगा क्या कंडीशन है. बट इट इज विद इन द वैल्यूज ऑफ 0 एंड पाई and it is unrestricted. It can be any value. It can be somewhere near 0, it can be somewhere greater than 0, for the case where m1 is less than m2. Are you understanding? Unrestricted मतलब ऐसा कोई restriction नहीं हम impose कर सकते हैं. तो 0 से 180 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है ऐसे करके. ठीक है? Yes sir. Okay. Let us do further analysis. Case number 2. This is case number 1. This is case number 2. Case number 2 is, let's suppose m1 is greater than m2. m1 is greater than m2. m1 is greater than m2. इसका मतलब m1 upon m2 is greater than 1. इसका मतलब capital V upon V1C is greater than 1. ठीक है? तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगा? ये समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? Yes sir. Yes. Let's come to the next diagram. Okay, now V1C can be in this direction. Yes, this is V1C, very much possible. Sorry, क्या हो गया? Okay, let me just close my notebook and start again. Now it's fine. So this is V1C. Okay, and यहाँ पे क्या होगा? अगर this is the case, इसका मतलब क्या है? V is greater than V1. सर नोट नहीं आ रहा सर स्क्रीन. V is greater than V1C. स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? नहीं सर. नहीं सर दिख रही है सर, दिख रही है सर. एक बार फिर से रिजॉइन करना बेटा, क्योंकि मैं तो 2 बार वो करके देख चुका हूँ. शायद मुझे लगता है ये इंटरनेट का कभी कभी होता है. एक बार रिजॉइन करके देख लो, ठीक है? वो तो अपने आप हो ही जाएगा. अगर ये V1C है तो कैपिटल V कैन बी इन दिस डायरेक्शन, है ना? कैपिटल V इज ग्रेटर देन V1C, दो दिस इज कैपिटल V, तो इट विल गो आउटसाइड द सर्कल, राइट? अगर कैपिटल V जो इट गोज आउटसाइड द सर्कल, इसका मतलब क्या है? दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट कैपिटल V का मैग्नीट्यूड जो है V1C से ज़्यादा है, तो द वेक्टर विल गो आउटसाइड. हाउएवर V1C डैश का मैग्नीट्यूड इज द सेम एज V1C, तो V1C डैश का मैग्नीट्यूड जो है सेम एज V1C. इन दैट सिचुएशन
v1 dash का magnitude will be this much. This will be v1. This will be v1 dash. Okay. When m1 is greater than m2, under that kind of a situation, this would be the vector diagram. This is clear? Now, Yes, if sir. this is indeed the vector diagram, पहले क्या था? पहले क्या था? How come the direction? How come? The direction of v1c dash is changed. वो तो राइट की तरफ जा रहा था ना फर्स्ट डायग्राम में, इसमें चेंज हो गई डायरेक्शन. तो ऐसा कोई वो थोड़ी ना है राइट लेफ्ट की बात. ये तो वेक्टर को वो यहाँ से technically ज्वाइन यहाँ पे करना तो- पड़ेगा ना. मतलब राइट Yes. लेफ्ट से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जैसे बेंट राइट की तरफ है ना मींस, और उसमें वो ऑपोजिट साइड जा रहा है वेक्टर, और उसमें एंगल चेंज हो जाएगा ना दोनों के बीच का, v1c एंड v1c डैश. हाँ, तो एंगल तो इनके ऊपर डिपेंड करता ना. v1 डैश, Okay. v1c, इन सब के ऊपर एंगल डिपेंड करता है. एंगल चेंज हो ही रहा है. इट्स अ डिफरेंट एंगल. वही तो मैं कह रहा हूँ Okay, बेटा कि that's m1 जब m2 से ज़्यादा होगा, इस केस में जो एंगल होंगे और इस केस में जो एंगल होगा, दे आर बिहेवियर इज डिफरेंट. दोनों Okay. सिचुएशन. इमेजिन करो कि एक छोटे ऑब्जेक्ट ने बड़े ऑब्जेक्ट पे कलाइड किया, या एक बड़े ऑब्जेक्ट ने छोटे ऑब्जेक्ट पे कलाइड किया, तो क्या होगा? बड़ा ऑब्जेक्ट इतना डिफ्लेक्ट नहीं होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. तो फिजिकली आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो. पहले मैथमेटिकली वेक्टर डायग्राम समझ लो, फिजिकली आपका सेंस आ जाएगा. थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ. तो ये तो हो सकता है, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है. ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. व्हाट्स द पॉइंट? अगर ये यहाँ पे होता है, लेट्स सपोज अगर ये यहाँ पे होता है, तो ये वेक्टर ये बन जाएगा. ठीक है. यस सर. अगर ये यहाँ पे होता है, तो ये वेक्टर ये बन जाएगा. ठीक है. यस सर. अब जो है ये मुझे बताओ. नाउ द एंगल phi1 is restricted. phi1 has some limitations. What is the maximum possible angle of phi1? The maximum possible angle of phi1 is such that जहाँ पे ये एंगल इस वेक्टर के साथ एक 90 डिग्री क्रिएट करता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो phi1 होगा, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल. रेस्ट एंगल्स विल बी लेस देन दैट. यस. यस सर. मतलब आप इसको इमेजिन करो दैट ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर. आपका सर्कल में ये पॉसिबिलिटी भी है. ठीक है. आपके सर्कल में ये पॉसिबिलिटी भी है. ठीक है. आपके सर्कल में ये पॉसिबिलिटी भी है. ठीक है. तो इस केस में जहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है, ये जो एंगल है दैट विल बी द मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल पॉसिबल एंगल्स. यस सर. That means Yes, sir. the scattering angle is now restricted by some maximum possible value. पहले केस में it was unrestricted. This case में it is restricted by some maximum possible value. और मैंने जो डायग्राम ऊपर बनाया है that is the diagram for the maximum possible value. Are Yes. you understanding? So, Yes, sir. so this is the diagram that I have made here. This is the angle corresponding to the maximum possible value. If this angle is 90 degrees. ठीक है. Out of all possibilities, the maximum possible value of phi1, which is a laboratory scattering angle, that is a laboratory scattering angle, corresponds to that value such that v1 dash and v1c dash are perpendicular to each other. ठीक है. जिस कॉन्फ़िगरेशन में v1 डैश और v1c डैश, छोटा सा v1c डैश, हाँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, उस कॉन्फ़िगरेशन में जो θ1 होगा दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एंड ऑल अदर पॉसिबल वैल्यूज विल बी लेस देन दैट मैक्सिमम. एंड दैट इज θ1 max. So
So all possible scattering angles, so all possible scattering angles are restricted by an upper limit of phi 1 max. Yes. Yes. देखो यहाँ पे क्या है, हमने कैलकुलेशन किया है सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में, लेकिन हमारा जो कंक्लूजन है वो एल सिस्टम के ऊपर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई वांट कंक्लूजन्स इन द एल सिस्टम. कैलकुलेशंस करना जो है एल सिस्टम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और क्योंकि एल सिस्टम में कैलकुलेशंस करना कॉम्प्लिकेटेड है, हमने सबको सी सिस्टम में कन्वर्ट किया, सी सिस्टम में कैलकुलेशंस किया, फिर दोबारा हम एल सिस्टम में वापस आ गए, और हमारी जो कंक्लूजन्स है वो एल सिस्टम के लिए है कि अगर जो है तुम्हारा इलास्टिक कलीजन है, अगर मास m1 ग्रेटर देन m2 है, देन इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड अ मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल सो दैट नो मैटर वॉट एवर स्कैटरिंग हैपन्स विल नेवर बी ग्रेटर देन दैट मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल. मतलब जो भी एल सिस्टम में तुम्हारा स्कैटरिंग होगा, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ मैक्सिमम एंगल जिसके बियॉन्ड जाएगा ही नहीं, इट विल नॉट गो बियॉन्ड इट. किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ. रिपीट करना. अगर m1 is greater than m2, अगर m1 is greater than m2, then it is possible to find an scattering angle such that for whatever the velocities, for whatever the different variables, it will never cross that limit. उस लिमिट से ऊपर स्कैटरिंग होगा ही नहीं. v1 चाहे कुछ भी हो, v1 डैश कुछ भी हो, v2 डैश कुछ भी हो. m1 ग्रेटर देन m2 के केस में एक मैक्सिमम अपर लिमिट टू स्कैटरिंग एंगल इज पॉसिबल. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट. Yes. ओके. Yes, sir. So for the case where m1 is less than m2, m1 less than m2 का मतलब ये है कि किसी बड़े ऑब्जेक्ट में एक छोटे बॉल ने स्ट्राइक किया. अगर एक बड़े ऑब्जेक्ट में छोटे बॉल ने स्ट्राइक किया तो उसका स्कैटरिंग एंगल कुछ भी हो सकता है. इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड. इमेजिन करो एक बड़ा सा बॉल है, छोटे बॉल ने स्ट्राइक किया, वो पीछे भी आ सकता है, किसी एंगल पे भी जा सकता है, उसमें स्कैटरिंग एंगल कुछ भी हो सकता है. इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड. लेकिन अगर किसी बड़े बॉल ने छोटे से बॉल को स्ट्राइक किया तो उसमें जो है एक अपर लिमिट पॉसिबल है. मतलब वो 180 डिग्रीज में बैक नहीं आएगा, नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर एक बड़े बॉल ने छोटे बॉल को कोलाइड किया तो 180 डिग्री में बैक नहीं आएगा. मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है. देयर इज एन अपर लिमिट जिसके बियॉन्ड वो स्कैटर नहीं करेगा. ठीक है. नाउ another situation. Yes, sir. Another situation, if m1 is very very large compared to m2. Let's suppose case number 2. Case number 3. m1 is very very large compared to m2. तो यहाँ पे जो है it is a little bit of a very easy analysis. मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है. If m1 is very very large compared to m2, if I look at this formula, I don't even draw the diagram. Tan phi 1 is equal to sin theta by m1 plus m2 cos theta. Okay. So tan phi 1 is equal to sin theta upon m1 by m2 plus cos theta. एक बात बताओ, what is the maximum possible value of sin theta? 1. 1. What is the maximum possible value of cos theta? 1. If m1 by m2 is very very large, it's a huge number. मतलब let's suppose m1 का 100 किलो है, m2 का 1 किलो है, तो 100/1 रेशियो हो गया ना. Yeah. तो ऐसे सिचुएशन में दिस रेशियो विल टेंड टू व्हाट? m1 sin theta upon m1 plus cos theta. m2 को नेग्लेक्ट कर देंगे m1 के रिस्पेक्ट में. तो क्या होगा फिर? सर डिनोमिनेटर काफी बड़ा हो जाएगा. इट विल टेंड टू 0 ना. टेंड टू 0. Yes. टेंड टू 0. It will tend to 0. This should be obvious from the expression. If m1 is very very large, okay, not just large, very very large. मान लेते हैं m1 upon m2 is equal to let's suppose 1000/1 रेशियो आ गया. ठीक है. m2 is a 1000/1 रेशियो. तो ऐसे सिचुएशन में जो है tan theta 1 will tend to 0, which simply means that phi 1 will tend to 0. Yes? 0. Yes, sir. So if phi 1 tends to 0, what is the maximum scattering angle? What is the scattering angle? It is 0.
मतलब पहला ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट चाहे कोई कहीं भी जाए। इट्स लाइक बहुत हैवी मास एक जा रहा है, छोटा मास वहाँ पे खड़ा है, तो हैवी मास डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, छोटा मास स्कैटर हो जाएगा इधर उधर, हैवी मास का कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। यस सर। स्कैटरिंग ऑफ हेवियर मास, ये तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे कॉमन सेंस से भी मालूम चल जाता है। स्कैटरिंग ऑफ हेवियर मास इज नेग्लिजिबल। जब एक हैवी मास दूसरे छोटे से मास को स्ट्राइक करेगा, छोटे छोटे मास इधर उधर स्कैटर हो जाएंगे, हैवियर मास का स्कैटरिंग होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, सो मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल इज ऑल्सो मिनिमम, मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल ऑल्सो टेंड्स टू 0। θ1 max will tend to 0. Okay, next case 4. If m1 upon m2 is very very less compared to 1, इस केस में आप क्या कह सकते हो? Then थीटा इक्वल टू tan phi1 is equal to sin theta upon m1 plus m2 plus cos theta. इसको आप लिख सकते हो if m1 by m2 is very very less compared to 1 as this is equal to sin theta upon cos theta. So this is equal to tan theta. So that means that is tan phi 1 is equal to or approximately equal to tan theta, or theta 1 is equal to, sorry, phi 1 is equal to theta. That means the laboratory scattering angle and the center of mass scattering angle will be near about equal if m2 is very very large compared to m1. ठीक है, that is L system scattering angle and center of mass system scattering angle are equal. ठीक है बेटा, मैं जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ. Anybody have any doubt, please ask. No sir, thank you sir. All right. Now case number 5. If m1 upon m2 is equal to 1 or m1 is equal to m2, अगर दोनों का मास बराबर है तो क्या होगा? अगर दोनों का मास बराबर है तो क्या होगा? Then tan phi 1 is equal to sin theta upon 1 plus cos theta. इसको क्या से लिख सकते हैं? sin theta upon 1 plus cos theta को क्या लिख सकते हैं? 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon 2 sin square theta by 2, which is equal to what? Plus 1. tan theta by I can write it like this. yes sir. Yes sir. ठीक है, ये तो मालूम ही होगा, 11th-12th में पढ़ के आप trigonometric relationships. Got it, sir. Got it. Yes So sir. tan phi 1 is equal to tan theta by 2 or phi 1 is equal to theta upon 2, which simply means that the laboratory scattering angle is half the center of mass scattering angle when both the masses have equal values. L system scattering angle. Scattering angle is half the center of mass scattering angle. Okay, when both masses are equal. Yes. Any questions from today's class? No sir. no sir.